السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 14 اگست 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی اہم ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عربین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو مل سکے. قربانی کرنے والے پر کیا پابندی ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال بال کٹوانے اور ناخن ترشوانے سے متعلق یہ سوال آتا ہے، کیا قربانی کا ارادہ کرنے والے بال اور ناخن کٹوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلامی امور کے ماہر عبداللہ عمار نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس سلسلے میں علماء 3 رائے رکھتے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ بال اور ناخن کٹوانا حرام ہے، اس کے قائل حنابلہ ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ بال اور ناخن کٹوائے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں، یہ نہ ہی حرام ہیں اور نہ ہی مکروہ، یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ حرام تو نہیں البتہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مالکیہ اور شافعیہ کا مسلک ہے. حاجیوں کی بسوں کے لیے ریموٹ گائیڈ سسٹم. نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بسوں کے رہنما ادارے کے ماتحت رابطہ نظام ارشدنی کا افتتاح کر دیا. اس کے معنی ہیں میری رہنمائی کرو. معلمین کے اداروں کے رابطہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر طلال قطب نے واضح کیا کہ ارشدنی اپلیکیشن کا مقصد پیشہ ورانہ انداز میں کاموں کو نمٹانا ہے. سعودی ویژن 2030 کی ہم رکابی کرتے ہوئے بسوں کی رہنمائی کا یہ طریقہ کار ایجاد کیا گیا ہے. بچے نے 8 سکے نگل لیے. بچوں کے اسپتال کے ڈاکٹروں نے مدینہ منورہ میں ایک 4 سالہ بچے کے پیٹ سے 8 سکے برآمد کر لیے. اس نے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ یہ سکے نگل لیے تھے. پیٹ میں درد پر اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں سے اسے بچوں کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اس کے پیٹ میں زخم ہو گیا تھا، اس کی جان جا سکتی تھی. معائنے پر فوری طور پر آپریشن کا فیصلہ کیا گیا جو 90 منٹ تک جاری رہا. حاجی اور زائر کے لیے سبیل. مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے حاجی اور زائرین کے لیے سبیل پروگرام جاری کر دیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حاجی اور زائر کی خدمت ہمارے لیے باعث فخر اور تمغے کی حیثیت رکھتی ہے. حاجی اور زائرین کے لیے سبیل کے زیر عنوان پروگرام کا مقصد مسجد نبوی شریف کے زائرین کو آب زمزم کی فراہمی ہے. مسجد نبوی، روضہ مبارکہ اور صحنوں میں ہر جگہ ضیوف الرحمان کو آب زمزم پیش کیا جا رہا ہے. الساحل مکہ روڈ پر حادثہ، 2 اہلکار جاں بحق 3 زخمی. الساحل مکہ روڈ پر ایک ٹرک اور ایک گاڑی میں ٹکر سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. 5 اہلکار اس سال حج خدمات کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے. الربیان برج کے اوپر ہیبت ناک ٹریفک حادثہ ہو گیا، جس سے 2 موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہو گئے. ٹرک کا عرب ڈرائیور بھی زخمیوں میں شامل ہے. زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے الولیت جنرل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا. الحفوف میں 14 ہوٹل سیل. الحفوف کی بلدیہ نے حفظان صحت کے ضوابط کی خلاف ورزیوں اور پیشہ ورانہ امور سے غفلت برتنے پر 14 ہوٹلوں اور مطبخ کو بند کرا دیا. الحفوف بلدیہ کے چیئرمین ڈاکٹر قاسم الحزوم نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان دنوں بلدیہ کے انسپیکٹرز عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تفتیشی مہم چلائے ہوئے ہیں. 230 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی تھیں. مالکان کو فوری اصلاح کا پابند بنا دیا گیا ہے، جبکہ 430 کلو گرام ایکسپائری ڈیٹ خوراک ضبط کر کے تلف کر دی گئی. 18 کارکنان کو صحت شرائط کی پابندی نہ کرنے پر ریستورانوں اور مطابخ سے نکال دیا گیا. بیشا سے پیدل حج کرنے والا مشاعر مقدسہ پہنچ گیا. بیشا سے پیدل سفر حج پر نکلنے والی ٹیم کا ایک رکن 450 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گیا. اس نے ہر روز 40 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا.
बीशा से मक्का मुकरमा पहुंचने में 10 रोज सर्फ किए पैदल हज करने वाले सऊदी शहरी का कहना है कि वो अवाम में चहलकदमी की अहमियत को उजागर करना चाहता है। इसके अलावा उसके ज़हन में एक बात ये भी थी कि हमारे आबाओ अजदाद पैदल चलकर ही उम्रा और हज किया करते थे, इस तरह उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। 63,331 तारकीन को मक्का जाने से रोक दिया गया। तफ्तीशी मराकज़ ने एलामिया जारी करके वाज़ह किया है, बगैर हज इजाज़तनामे मक्का का रुख करने वाले 63,331 अफराद और 28,264 गाड़ियों को वापस कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चेक पोस्ट के एहलकार 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और बगैर इजाज़त हज नामे के मक्का मुकरमा का रुख करने वाले तारकीन वतन को मुकद्दस शहर जाने से रोक रहे हैं। सिर्फ इन तारकीन वतन को मक्का मुकरमा जाने का मौका दिया जा रहा है जिनके पास हज इजाज़तनामे हैं। हज इजाज़तनामे ना रखने वालों की गाड़ियों का रुख अल-जमूम की तरफ कर दिया जाता है। फैमिली फ़ीस ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं, अफवाहें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के मुराफ़कीन पर माहाना फ़ीस वापस लेने या उसे महदूद करने का कोई इरादा नहीं। 2020 तक मुराफ़कीन फ़ीसें तय हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ारत मेहनत और समाजी बहबूद ने वाज़ह किया है कि तारकीन वतन पर आयद की जाने वाली पहली फैमिली फ़ीस को बरकरार रखने की ऐवान शाही से कोई दरख्वास्त नहीं की गई। सोशल मीडिया पर यह अफवाह गर्दिश कर रही है कि वज़ारत मेहनत ने ऐवान शाही से दरख्वास्त की है कि तारकीन से पहले साल 100 रियाल माहाना फैमिली फ़ीस वसूल की गई थी। इसमें आइंदा सालों के दौरान मुकर्रर इजाफा वापस लिया जाए और पहले साल वाली फ़ीस ही बरकरार रखी जाए। वज़ीर मेहनत और समाजी बहबूद ने मज़कूरा वज़ाहत ठेकेदारों की कौमी कमेटी के चेयरमैनों अरकान से मुलाकात के मौके पर दी। वाज़ह रहे कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 2017 में माहाना फ़ीस 100 रियाल, 2018 में फ़ीस 200 रियाल, 2019 में 300 रियाल जबकि 2020 में माहाना फ़ीस 400 रियाल मुकर्रर है। 1000 सऊदी डॉक्टरों ने कनाडा के हस्पतालों को खैरबाद कह दिया। सऊदी अरब में कनाडा की मुदाखलत से पैदा होने वाले बहरान के बायस 1000 सऊदी डॉक्टरों ने कनाडा के अस्पतालों को खैरबाद कह दिया। कनाडा की रॉयल फैकल्टी ने वज़ीर आज़म से मसला हल करने के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। फैकल्टी के सरबराह ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की। इस मौके पर सऊदी डॉक्टरों ने अस्पतालों से निकलने से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के तौर पर तरीके ज़ेरे बहस आए। दूसरी जानब कनाडा में अकामत पजीर सऊदी तलबा ने वाज़ह किया कि जिस वेबसाइट से उनके नाम से जारी किए गया बयान है सऊदी तलबा ने कनाडा में कोई राबता फोरम कायम किया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी अरब हज डाक टिकटों का अजरा। सऊदी महकमा डाक ने हज मौसम 1439 हिजरी के मौके पर पहली बार 3 रियाल और 5 रियाल वाले यादगारी टिकट जारी किए हैं। सऊदी अरब दूसरा अरब मुल्क है जो यादगारी डाक टिकट जारी करता रहता है। हिजाज में पहला डाक टिकट 1916 में जारी किया गया था। सऊदी अरब के नाम से पहला यादगारी डाक टिकट बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज के ज़माने में 1934 में जारी किया गया था। गिलाफ़े काबा कलीद बरदार के हवाले। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने इतवार को जद्दा गवर्नर हाउस में खाना काबा का नया गिलाफ कलीद बरदार डॉक्टर साहले बिन जैन अल आबिदीन अल शेबी के हवाले किया। हर साल यकम ज़ुल्हज को गिलाफ़े काबा कलीद बरदार के सपुर्द किया जाता है। नया गिलाफ 9 ज़ुल्हज्जा को खाना काबा पर चढ़ाया जाता है। मशायर मुक़द्दसा में साइकिलों और मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी। इदारा अमन आमा ने वाज़ह किया है कि मशायर मुक़द्दसा में साइकिलों और मोटरसाइकिलों का दाखिला मना है। इजाज़तनामे के बगैर कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की मशायर मुक़द्दसा दबाब मोटरसाइकिल या आम साइकिल नहीं ले जा सकता। अमन आमा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर मज़कूरा पाबंदी की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। वाज़ह रहे कि हज अय्याम में मिना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस बाज़ मकामी नौजवान मोटरसाइकिलों से हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम अंजाम देते हैं। इस पर वो हाजियों से अच्छी खासी फ़ीस वसूल करते हैं। कम अज़ कम फ़ीस 50 रियाल होती है। मदीना मुनव्वरा 3 चोरों पर मुश्तमिल सह मुल्की गिरोह गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने 3 चोरों पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। घरों और दुकानों में चोरी का पेशा इख्तियार किए हुए थे।
मदीना मनव्वरा पुलिस के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने ये इतला देते हुए वाज़ेह किया कि गिरोह में एक सऊदी शहरी के अलावा एक मिस्री और एक बारकीना फासो का बाशिंदा है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि तीनों ने दुकानों और घरों में चोरी की बहुत सी वारदातें की थी। अब तक वो 19 वारदातों का इकरार कर चुके हैं। बहुत सारा चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया गया। चोरी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी जब्त कर लिए गए। इनका मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तमाम सरकारी इदारों में पीर ड्यूटी का आखिरी दिन। ईद उल अजहा की तातील एक दिन पहले हो गई। पीर को ड्यूटी का आखिरी दिन था। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हिदायत जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक हज मंसूबे की कामयाबी और आज़मीन की खिदमत पर मामूर इदारों की बेहतर कारकर्दगी के लिए यह हिदायतनामा जारी किया गया था कि ईद की छुट्टियां एक दिन पहले की जाएंगी। हिदायत के मुताबिक पीर को तमाम सरकारी इदारों में ड्यूटी का आखिरी दिन था। जी तो दोस्तों, ये था आज 14 अगस्त 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।